Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Ishani and in this video I'll be sharing my strategy that helped me score 99 out of 100 in my 10th board examinations. So without wasting any more time, let's get started. It's really easy to get above 95 or to get above 90 in maths because it's either wrong or right. Teacher marks अपनी marking scheme से answer match करके easily आपको marks दे देता है step wise. But to get above 95 can be a little tricky because वही कुछ questions CBSE exam paper में डालता है which tricks you and you're not able to solve them and you fall beneath 95. Which is again a great score, but if you are aiming for a 99 or a 100 in maths, then this is the video that you need. But another thing that I want want you guys to know is that just don't watch this video, but also implement the tips that I've shared with you guys in this video, because watching strategy videos is not enough. This is the strategy video for maths. I'm also going to come up with strategy video for other subjects. So do let me know which subject do you want me to break down in my next video. So without wasting any more time, let's get started with the tips for maths. Firstly, which books did I use and which books should you use? Number one book जो कि हर कोई बोलता है is going to be NCERT, and because it is NCERT. I'll not suggest you guys to go with R.D. Sharma, R.S. Agarwal, no need at all. I say that out aloud. NCERT is the book that you have to go for. In the initial months, आपको अपना syllabus भी NCERT से ही करना है. Practice all the questions. When I say NCERT, I mean I want you guys to do each and every example, each and every exercise from the NCERT. At least once, if not twice. Otherwise, I'll say 2 बार तो करना ही चाहिए. How do you do it 2 times? Once you're doing it in the school or in the coaching as the teacher is making you solve the questions. काफी सारे बच्चे नहीं करते हैं question solve, बस solution देखते रह जाते हैं. No, you have to write it down. You have to solve each and every question. And एक बार आप घर पे खुद भी solve करेंगे हर एक question को. So this way, you wouldn't even realize, but by the end of the year, you'll see कि आपने अपनी NCERT को 2 से 3 बार तो practice कर ही लिया है. So whichever question comes your way from the NCERT, there's no way you're missing out on it. There's no way you're losing your marks on such questions. And another thing is that NCERT में पहले optional exercise हुआ करती थी, which has now been taken out. I want you, if you are from standard maths, to do that optional exercise as well. Google पे आपको NCERT की chapter wise PDF मिल जाएगी, उसमें optional भी दे रखा होगा पिछले sessions का. उन ऑप्शनल एक्सरसाइजेस को करना बहुत जरूरी है, बिकॉज केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे या जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, देयर इज अ हाई चांस कि वो उस ऑप्शनल एक्सरसाइज का ही हो जो आपके नए एडिशन में आपको दे ही नहीं रखी है, विच आई डोंट नो व्हाई, बट डू दैट. सो बाय एनसीईआरटी आई मीन एवरी नुक एंड कॉर्नर में जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, यू हैव टू प्रैक्टिस इट वंस ऑन योर ओन, maybe twice on your own if you are not confident enough, and एक बार अपने टीचर के साथ जब टीचर करा रही है along with him or her, you have to make sure कि आप practice कर रहे हो question को. Now while you're practicing questions from the NCERT, another really important thing that I want you to do is कि जो questions आप first attempt में solve कर ले रहे हो, you are marking them. उनको आप टिक कर दो. बट जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहे हो या फिर जिनमें आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, जिनमें आप अटक गए, उनको आपको एनसर्कल करना है. सो दैट जब आप उस एनसीईआरटी को रिवाइज कर रहे हो तो यू डोंट रियली हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑल ओवर अगेन. लेकिन जो आपने क्वेश्चंस को मार्क कर रखा है, एनसर्कल कर रखा है, आप सिर्फ उनको ही वापस से प्रैक्टिस कर रहे हो. एंड नॉट ओनली दिस, आपको सिर्फ एनसर्कल ही नहीं करना है, बट उस पेज के एकदम एंड में जो आपको थोड़ा सा स्पेस दी होती है हर एक पेज के सबसे नीचे, उधर पे आपको मेंशन भी करना है कि मेरा क्वेश्चन 9 गलत दिया था जिसको मैंने एनसर्कल कर रखा है, तो वो गलत क्यों गया था? क्या वो कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत हुआ था, या फिर वो गलत इसलिए हुआ था क्योंकि मैं फॉर्मूला ही भूल गया था? तो आपको ऐसा लिखना क्यों है? इसलिए लिखना ताकि आपको पता लगे एट द एंड ऑफ द डे कि आपकी जो गलतियां हो रही है वो ज्यादा कैलकुलेशन की वजह से हो रही है. अगर हो रही है तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप कैलकुलेशन अपनी अच्छी करो. एंड हाउ डू यू डू दैट? यू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन जो हैवी है कैलकुलेशन में. एंड अगर आप फॉर्मूला भूल रहे हो उसकी वजह से आपको क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप फॉर्मूला बार बार रिवाइज कर रहे हो, बार बार मेमोराइज कर रहे हो. सो दिस वे यू हैव टू राइट दीज थिंग्स डाउन एज वेल, सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दोज वीक एरियाज ऑफ योर्स एंड वर्क अपॉन योर मिस्टेक्स, इम्प्रूव योरसेल्फ एंड मेक इट बेटर द नेक्स्ट टाइम. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं. 10th में there are not so many formulas.
सो देयर इज नो वे कि आप अपना क्वेश्चन गलत करो फॉर्मूला की वजह से, बिकॉज बहुत ही कम फॉर्मूलाज हैं, आपको उनको मास्टर करना ही है. It's not a really big deal. If you are afraid of maths, if you're not good at it, then also it's not difficult at all. So just take this notion out of your mind कि आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो, because it's actually very very easy. एंड फॉर्मूलाज भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है. लाइक आप एक पेज में पूरे 10th की मैथ्स के फॉर्मूलाज को सम अप कर सकते हो. नाउ हाउ डू यू मेक श्योर कि आपको फॉर्मूलाज याद रहे? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू. उस एक पेज में हर एक चैप्टर का फॉर्मूला आपको लिखना है, अपने बेडरूम की वॉल पे, अपने स्टडी रूम की वॉल पे उसको पेस्ट करना है, ताकि एवरी मॉर्निंग यू वेक अप और अपने मैथ्स का डेली सेशन स्टार्ट करने से पहले भगवान का नाम आप कैसे लेंगे, उन फॉर्मूला शीट को देखेंगे और जोर जोर से सारे फॉर्मूलाज को बोल बोल के रिवाइज करेंगे, एंड देन ही आप बैठेंगे अपने स्टडी डेस्क पे एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लगेंगे. तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले ऐसे हर दिन आपके फॉर्मूलाज रिवाइज हो रहा है. देयर इज नो वे यू आर एवर गोना फॉरगेट इट. लाइक लिटरली फॉर्मूलाज आपके वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में फ्लो करने लगेंगे अगर आप हर दिन इतने अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे. एंड जब भी पॉसिबल हो आप एक ब्लैंक पेज लेकर एक्टिवली रिकॉल कर सकते हो फॉर्मूलाज को. हाउ डू यू एक्टिवली रिकॉल द फॉर्मूलाज? जस्ट कीप ऑल ऑफ योर बुक्स असाइड, वो ब्लैंक पेज लो और उसमें आपको जो भी फॉर्मूला आते हैं, जो भी आपको याद है हर एक चैप्टर से लिखो, ताकि आपको पता लगे कि आपके सबकॉन्शियसली आपको कितने फॉर्मूलाज आते हैं. राइट? तो ऐसे ऐसे लिख लिख के भी आप फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो. और सबसे बेहतर तरीका फॉर्मूलाज रिवाइज करने का होता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना. आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आप जितनी बार उस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे, देयर इज नो वे यू आर गोना फॉरगेट अबाउट इट. दूसरी चीज है कि क्या आपको मैथ्स में नोट्स बनाने की जरूरत है? नॉट एट ऑल. मैथ्स में कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. द मोर क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, द बेटर यू आर गोना गेट एट द सब्जेक्ट. आपको क्या करने की जरूरत है? फॉर्मूला शीट्स बनाने की जरूरत है. एंड दूसरी चीज ये है कि आप जो भी क्वेश्चंस गलत कर रहे हो उनको आपने एनसर्कल तो कर रखा है, बट आप एक और चीज कर सकते हो कि आप एक पतली सी नोटबुक लेकर उन तरीके के क्वेश्चंस को उस नोटबुक में नोट करते रहो कि ओके, आई ऑफन टाइम्स मेक मिस्टेक्स इन सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. तो आप उस नोटबुक में क्या करिए, उस नोटबुक में उन तरीके के क्वेश्चंस जो आपने गलत किया था उसको लिख लो, ताकि रिविजन के टाइम पे आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करो जो आपने गलत करे थे, और उनमें आपने क्या गलती करी थी वो भी आपको उस नोटबुक में लिखना है. तो इस तरीके से बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल हैव अ नोटबुक वेल प्रिपेयर्ड ऑफ ऑल दोस क्वेश्चंस जहाँ पे आप गलत होते हो. बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप अलग अलग सोर्सेस से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हो, फ्रॉम द एनसीईआरटी, मे बी इट्स सम वेबसाइट, एंड देन आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस. तो बहुत अलग अलग सोर्सेस से क्वेश्चंस होने वाले हैं. आप हर जगह एनसर्कल तो कर दोगे क्वेश्चन को, लेकिन फिर ढूंढो के कहा उस सवाल को. उस नोटबुक में मिलेगा वो आपको सवाल, आपको उस नोटबुक में उन सवालों को नोट करना है, ताकि आप उन सवालों को रिवाइज करो, ना कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस को वापस प्रैक्टिस करो. दैट इज हाउ यू रिवाइज मैथ्स one day before exam. So a lot of people are confused कि हम क्या करें एक दिन पहले. This is what you do. Apart from that, मैथ्स को रिवाइज करने का एंड प्रैक्टिस करने का बहुत ज्यादा अच्छा तरीका इज मैराथन्स एंड यूट्यूब वीडियोस, जहाँ पे टीचर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2-2 घंटे में उन्होंने सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करा रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज इन चैप्टर्स के. तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो अपने एग्जाम से पहले, या फिर जब भी आपको वो चैप्टर रिवाइज करना है एंड आपको बुक से नहीं करना है, बिकॉज यू जस्ट डोंट वांट टू प्रैक्टिस दो सेम ओल्ड क्वेश्चंस अगेन. तो इन वीडियोस को रेफर करो. के बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे बहुत सारी मैराथन्स भी है, तो अगर आपको एक बार हो जाता है सिलेबस, तो आप इन पुराने सालों की मैराथन्स को भी देख सकते हो. बट दैट इज अनदर थिंग, अभी आप सिलेबस करिए. अनदर थिंग इज दैट मैथ्स को हर दिन कितना घंटे पढ़ना चाहिए. सी, दैट इज a very subjective question and it differs from one person to another. But अगर मैं अपने point of view से आप लोगों को आंसर दूं, तो I personally used to study maths for 1 to 2 hours every day, apart from school. खुद अपने आप से 2 hours approximately every day, consistently. 1 hour to 2 hours every day is more than enough if you're consistent with it. And what you have to do in these 2 hours, in this particular 1 to 2 hours, is practice as many questions as possible. आपको मे बी टीचर ने जो स्कूल में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कराए, आप वापस वही रिवाइज कर सकते हो, या फिर you can practice some such sort of similar questions जिसमें शायद वैल्यूज थोड़ी अलग, या फिर जो पिछले साल के पेपर्स में पूछे जा चुके हैं. But from where do you get these questions? Again, question banks are a great source to get those questions from. OSWAL के question banks is what I've been suggesting to my juniors for so many years because I personally use them. So these question banks have been launched for the session 25-26. I'll give you a sneak peek into these books. So question banks are available for all the subjects. मैं आपको maths का question bank दिखाती हूँ so that you guys get an idea of what
are the features of this. So OSWAL question banks is gonna be your go-to. एक बार NCERT practice करने के बाद और questions practice करने का best तरीका is to go with these question banks, जहाँ पे आपको chapter wise and topic wise अलग अलग varieties के questions जो कि previous year questions भी हैं and most expected questions भी हैं, सब in just one book has been provided. तो NCERT के बाद you just be thorough with this and I think that you are super duper good to go. So I'll tell you guys what are the features of this book ताकि आप लोग को अच्छा idea मिल जाए. So सबसे पहले तो it has previous year paper जो इस साल आया था, so that you guys get an idea कि किस तरीके के questions आते हैं अपने board exams में. And then we start with chapter wise questions जिसमें सबसे पहले you are provided with revision notes. As I've already mentioned, chapter को पढ़ने से पहले उसका एक quick revision करना is always beneficial. So this way you can revise the chapter and then you can get started with practicing different typology of questions, everything. This is like your go-to all-in-one book. Subjective type questions hai, and then you have objective questions, competency questions, case-based questions, all sort of questions जो आपके board exams में पूछे जा सकते हैं. The best part that I loved about this book, which actually helped me personally a lot, was जो आंसर्स दे रखे हैं टॉपर्स के, बिकॉज दिस गिव्स अस एन आइडिया कि किस तरीके से हमें अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है. कॉमनली मेड एरर, आपको आंसरिंग टिप्स भी दे रखी हैं. एंड द बेस्ट पार्ट, यू हैव योर माइंड मैप्स. सो दिस वे यू विल बी एबल टू गेट अ ब्रॉड आइडिया कि हर एक चैप्टर में है क्या, एंड आप उसके हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड इट्स नॉट रियली नेसेसरी कि आप मैथ्स को हमेशा टाइम बाउंड मैनर में पढ़ो कि भाई 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटा पढ़ना है, बिकॉज आपकी स्पीड ऑफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस अलग अलग हो सकती है. इनिशियली क्या पता आप बहुत स्लो सॉल्व करो, बट एज यू प्रैक्टिस एवरी डे यू विल सी एन इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ. पहले आप क्या पता 1 घंटे में सिर्फ 10 क्वेश्चन कर पा रहे हो, बट नाउ यू आर एबल टू प्रैक्टिस 15 to 20 क्वेश्चन इन 1 hour. So this sort of improvement will only be witnessed जब आप हर दिन प्रैक्टिस करोगे. एंड अगर आपको टाइम बाउंड मैनर में मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करनी तो आप क्वेश्चन वाइज भी अपने आप को चैलेंज दे सकते हो कि टुडे आई वांट टू प्रैक्टिस 25 क्वेश्चंस. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट टेक्स. आपने अपने आप को एक टारगेट दे दिया है कि मुझे 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. सो आई डोंट नो इफ इट टेक्स मी 4 hours or it takes me just 2 hours or just 1 hour. I have to make sure I do it, because ultimately what really matters is the quality and not the quantity. And that is what is going to make or break your maths का game. And apart from that, a really helpful tip in maths is कि आप लोग sticky notes में हर एक चैप्टर में जो भी आपके हर एक चैप्टर में, फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर्स, बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है. एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, अच्छे से A to Z आपने पढ़ लिया. यू हैव टू डू नथिंग बट उस स्टिकी नोट को लो, उसमें उस चैप्टर के जो भी सब टॉपिक्स थे उनको बस नोट करो एंड अपने बेडरूम में या स्टडी रूम में चिपका दो. तो ऐसे ऐसे करके इफ देयर आर 12 to 13 चैप्टर्स इन योर सिलेबस, ऐसे करके 12 to 13 स्टिकी नोट्स होने चाहिए आपके रूम में, जिसमें हर एक चैप्टर एक कंसाइज्ड फॉर्म में मेंशन्ड है कि इसमें ये टॉपिक्स, सो दैट एवरी मॉर्निंग यू वेक अप यू कैन हैव अ लुक एट इट, यू कैन बी लाइक ओके ये इस चैप्टर में ये सारी चीजें हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, आई नो ऑल ऑफ देम. तो इस तरीके से आपका एक बहुत ही जल्दी से ना एक्टिव रिकॉल हो जाता है, एक माइंडसेट बन जाता है आपका कॉन्फिडेंस का कि आई नो एवरीथिंग बिकॉज आई हैव डन दीज थिंग्स. जो भी मेरे वॉल पे चिपकी हुई है ये चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो कि मुझे बाय हार्ट आते हैं. एंड इन स्टिकी नोट्स का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो सकता है कि आप जो भी क्वेश्चन गलत कर रहे हो अपनी एनसीईआरटी से, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 4, आप उसको ना छोटा सा लिख सकते हो उन स्टिकी नोट्स में कि क्वेश्चन 4 था जो मैंने गलत किया था. तो उस तरीके से, और आप गलती भी लिख सकते हो छोटी सी कि ओके इसमें मैंने करी थी सिली मिस्टेक इस तरीके की, मैंने x को ये ले लिया था बट आई शुड हैव टेकन इट समथिंग एल्स. तो इस तरीके से आप उस स्टिकी नोट्स में ये सारी की सारी चीजें मेंशन कर सकते हो, जिसकी वजह से आप वापस से वो गलती वापस नहीं करने वाले हो. दूसरी आदत, दीज आर सम हैबिट्स जो कि आपको मैथ्स को प्रैक्टिस करते समय बना लेनी चाहिए, बिकॉज दीज विल हेल्प यू स्कोर रियली ग्रेट इन योर बोर्ड एग्जाम्स. सबसे पहले आपका अगर जो भी फाइनल आंसर आ रहा है वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है तो उसको बॉक्स में बंद करने की आदत इज वेरी बेनिफिशियल. एंड अगर कोई प्रूविंग वाला क्वेश्चन है तो उसमें एंड लाइन जो लिखते हैं ना, हेंस प्रूव्ड दैट दिस इज व्हाट इट इज, वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके अलावा आपने एक बॉक्स में उस न्यूमेरिकल आंसर को तो लिख दिया, बट उसके यूनिट्स हम बहुत बार किलोमीटर्स, रुपीस लिखना भूल जाते हैं, वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक फाइनल कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना अगर आपके पास टाइम है तो वो भी बहुत ज्यादा प्रेफरेबल होता है. तो आप प्रैक्टिस करते समय ये आदतें डाल सकते हो कि 38 meters शुड बी द लेंथ ऑफ द क्लॉथ
So 38 meters आप आंसर लिख सकते हो, but if you also write 38 meters is the length of the cloth, that provides more depth and clarity to your solutions and also to your understanding as well. And हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप डायरेक्टली, आई नो आपको फॉर्मूला आता है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, बट फॉर्मूला लिखो. फॉर्मूला जितनी बार आप लिखोगे उतने अच्छे से आपको याद होगा. तो हर एक क्वेश्चन में चाहे जितना भी इजी फॉर्मूला हो उसको नोट करो, बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में ना यही गलती होती है एंड मोमेंट कि आपको जितनी भी कोशिश करो फॉर्मूला याद नहीं आता है. राइट, सो दिस इज समथिंग विच शुड नॉट बी द केस. आपको ये मेक श्योर करना है. तो आप जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतना अच्छा होगा. और फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, जब आप उसको सोल्यूशंस लिखते समय लिख रहे हो. तो ये सारी चीजें आपको आंसर राइटिंग में ध्यान रखनी है. दीज आर द हैबिट्स दैट यू हैव टू बिल्ड अप थ्रू आउट द ईयर. प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में गिवन, टू प्रूव एंड प्रूव, इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो करने की आदत भी आपको डालनी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैथ्स में एमसीक्यूज इज व्हाट मेक्स योर गेम और ब्रेक्स योर गेम. प्लस एमसीक्यूज बहुत ज्यादा अच्छा तरीका होता है अपने चैप्टर्स को रिवाइज करने का, बिकॉज डेफिनेटली मैथ्स में हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी तो बार बार सॉल्व नहीं करते रहेंगे. तो क्विजेस खेलना एंड ऑनलाइन सोर्सेज से, क्वेश्चन बैंक से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना कैन बी अ ग्रेट सोर्स. उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, प्लस पूरे के पूरे कंसेप्ट भी बहुत जल्दी रिवाइज हो जाते हैं. एंड एमसीक्यूज आर रियली स्कोरिंग अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, बिकॉज आप एमसीक्यूज में जितना भी बड़ा सोल्यूशन कर लो, अल्टीमेटली आपको मार्क्स जो 1 नंबर मिलता है वो मिलता है ए देन सोल्यूशन लिखने के लिए, बी एंड देन सोल्यूशन लिखने के लिए. तो आपके स्टेप्स नहीं देखेंगे, वो देखेंगे आपका अल्टीमेटली आंसर क्या आया. तो आप जितने ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी जल्दी शॉर्टकट्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन को करने के, कि ओके इफ दिस इज द क्वेश्चन, मुझे पूरा फॉर्मूला लगा के इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकता हूँ. हाउ विल यू बी एबल टू गेट दैट एक्सपर्टीज? आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे. तो एट द एंड ऑफ द डे मैथ्स में I can keep on ranting about maths the entire day in the name of strategy, but there's just one simple strategy in maths, that is practicing questions. बस एक जगह जो प्रॉब्लम आ जाती है वो है practicing the right set of questions is important, जो कि हमें नहीं मिलता है. So I've already told you guys the sources. From where can you practice the right set of questions? From the NCERT. NCERT exemplar is something जो कि बहुत ज़्यादा लोग सजेस्ट करते हैं, but I don't think it's really required unless आपके पास literally कुछ और नहीं है करने के लिए, आपने सब कर लिया है. So right set of questions आप practice कर सकते हो NCERT से. Previous year questions आप कर सकते हो practice from question bank, which I've already suggested you guys. And बहुत सारी online websites हैं, you have really great teachers on YouTube, वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहते हैं. सो आई थिंक दैट फ्रॉम वेरेवर यू आर गेटिंग दीज ट्रस्टेड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करो. दिस वाज ऑल फॉर द मैथ्स स्ट्रैटेजी. डू लेट मी नो कि आपको कौन सी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी चाहिए नेक्स्ट. इंग्लिश की आई एम नॉट गोना पोस्ट अगेन, बिकॉज इंग्लिश में आई हैव ऑलरेडी मेड अ फुल फ्लेजेड वीडियो ऑफ अराउंड 20 मिनट्स कुछ आई थिंक 2 months पहले, सो यू गाइज कैन रेफर टू इट. बट अगर उसके बाद फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज 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 feel free to ask me and do let me know कि आपको कौन से सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी चाहिए नेक्स्ट. एंड इफ यू गाइस हैव सम मोर क्वेरीज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, do let me know.